Hello dear students, welcome back to your biology channel. So today we'll be continuing with the second part of your chapter number 2, human chromosome. And today we'll be discussing the DNA structure, DNA replication, functions of chromosomes and some of the important key terms. In the first part you have already learned about the number of chromosomes, types of chromosomes, structure of chromosomes and chromatin structure. So let's continue with the structure of DNA. So DNA means the deoxyribonucleic acid. You need to learn this abbreviation because it is frequently asked in exams. So it is the code of life, okay? But because by this code only our whole life and our body structure and organization and functions, all things will be controlled, okay? So deoxyribonucleic acid is our hereditary material. I hope in the first part of the chapter now it is clear to everybody that DNA is that thread-like structure which carries all the genetic informations from the parents to the offsprings, and it is present supercoiled in the nucleus of every cell. Mostly it is located in the nucleus, but a little amount of that is also present in mitochondria also, that you will study in your higher classes. Okay, so if we talk about the structure of DNA, it is a ladder-like structure, okay, and that ladder is supercoiled or spiraled, okay, and we can say the handrails of that ladder is made up of sugar and phosphate, whereas the steps are made up of nitrogenous bases. So basically it is a very large molecule which is made up of a small repeating units called as nucleotide, and each nucleotide is consist of one sugar molecule, one phosphate and one nitrogenous bases. okay, ये तीनों कंबाइन होके एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है, एंड देन ये न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होके पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनाता है. So first of all, the structure of DNA was studied by Rosalind Franklin, and afterwards Watson and Crick gave the detailed three-dimensional structure of that double helical model of DNA in 1953, which we are following till date. Okay, so let's start with the structure of DNA in detail. So if we are talking about structure of DNA, I explained you that it is a ladder-like structure. और इस लैडर के ये जो हैंड रेल्स हैं, दीज हैंड रेल्स आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फोस्फेट, एंड द स्टेप्स, ये जितने भी स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस. सो it is a large molecule which is consisting of two polynucleotide strands. What is the meaning of polynucleotide strands? Try to understand. Poly means many, nucleotide means that repeating unit, strands, strand यानी ये जो strands हैं ये कैसे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के बने हुए हैं, बिकॉज एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड हुआ, कंबाइन होते होते ये क्या बन गया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बने हैं. बट दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, और वी कैन से दीज स्ट्रैंड्स रन ऑपोजिट टू ईच अदर. यू कैन सी हियर, ये जो स्ट्रैंड है वो 5 to 3 डायरेक्शन है और ये स्ट्रैंड है 3 to 5. सो इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं. क्लियर? सो ये इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसकी बेसिक यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हुई है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है. सपोज ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका मैग्नीफाइड व्यू है. ओके, इट इज दैट हैंड्रेल्स ऑफ द लैडर, और ये क्या है, स्टेप्स है. सो हैंड्रेल्स जो है उसके अंदर क्या क्या है, दिस पेंटोज शुगर इज देयर, राइबोज शुगर है, उस शुगर का नाम है पेंटोज शुगर बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स. सो पेंटोज शुगर, और जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज अ फोस्फेट मॉलिक्यूल. सो जो हैंड्रेल्स होती है लैडर में उसमें क्या क्या है, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट. दैट्स व्हाई आई सेड कि जो बैकबोन होती है डीएनए की दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फोस्फेट मॉलिक्यूल्स. ओके, और जो स्टेप्स है, स्टेप्स में आप देख सकते हो ए टी जी सी, दीज ऑल आर द नाइट्रोजिनस बेसिस. ओके, सो जो स्टेप्स है वो किसके बने हुए हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस. अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है, मीन्स व्हाट इज वन न्यूक्लियोटाइड जो कि बार बार रिपीट होकर इस पूरे स्ट्रक्चर को बना रही है. सो वन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ वन पेंटोज शुगर, one phosphate group and any one of the nitrogenous bases. So ये particular structure जो है that is one nucleotide. Okay, it is called as one nucleotide. So you can see here that one nucleotide is connected to this one nucleotide, is connected to this, and they all are linked together by
फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। इनके बीच में कौन सी बॉन्ड्स है? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है। सो ये आपस में कंबाइन होके यहाँ पे ये स्ट्रैंड बना देंगे। सो ये वाला जो स्ट्रैंड है, दूसरा वाला उसके एंटी पैरेलल रन होगा, यहाँ पे ये ऑपोजिटली बाइंड हो चुके हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं ये कैसे बाइंड होगी? ये बाइंड होगी हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में हुई है? हमेशा जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो 4 तरीके के हो गए। दैट इज A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमीन, G फॉर ग्वानिन एंड C फॉर साइटोसिन। Clear? So we can divide all these nitrogenous bases into 2 categories, purines and pyrimidines. प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, दे आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स। एंड pyrimidines में कौन से आते हैं? साइटोसिन एंड थाइमीन। सो हमेशा कोई भी प्यूरिन होगा वो pyrimidine के साथ कंबाइन होता है। क्लियर है? So that purine adenine will always combine with thymine with 2 hydrogen bonds, and the purine guanine will always combine with the cytosine with 3 hydrogen bonds. So here you need to understand only one thing, that is जितने भी nitrogenous bases हैं, these are 4 types of nitrogenous bases are there. ये कौन कौन से हैं? 2 purine और 2 pyrimidine. Purines में आते हैं Ag and pyrimidines में आते हैं Ct. ओके, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। सो जितने भी स्टेप्स हैं डीएनए के अंदर, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस। नाउ हियर यू कैन सी कि जनरली ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर है ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, ये हेलिकल होता है, मीन्स ये स्पाइरल्ड है। यू कैन सी इट इज स्पाइरल्ड हेयर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स हैं और स्पाइरल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, सो डीएनए के अंदर जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एंड द स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, बिकॉज ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो बार बार रिपीट होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, एंड दे रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर, बिकॉज 2 हेलिक्स हैं वो आपस में कॉइल्ड है या स्पाइरल्ड है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। Clear? So here is one more diagram. I think it would be more clear to you now कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? एक शुगर मॉलिक्यूल, 1 नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमीन, एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। और ये जब रिपीट हो के एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो जनरली एडेनिन विल कंबाइन विथ थाइमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ग्वानिन विल कंबाइन विथ साइटोजन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। क्लियर है? एंड दीज न्यूक्लियोटाइड, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये बनाते हैं मेन दैट हैंड्रेल ऑफ अ लैडर, एंड स्टेप्स आर मेड अप ऑफ दीज guanine and cytosine, adenine and thymine means nitrogenous bases. ओके, सो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको यही याद रखना है कि डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स की रिपीटिशन से बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस, 1 पेंटोज शुगर एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप, ये बनाता है एक न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होके एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बनाएंगे इसकी बैकबोन, एंड जो स्टेप्स हैं वो बनेंगे नाइट्रोजनस बेसिस से। क्लियर? एंड दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड इट इज अ स्पाइरल्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? नाउ कम टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, यानी जो पुराना डीएनए है उससे जब नया डीएनए बन जाता है सो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी डीएनए अपनी ही कॉपी बनाएगा। पहले एक सिंगल कॉपी था, अब उससे उसने क्या बना दी है? 2 नई डॉटर मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। सो जब भी डीएनए को रेप्लिकेशन करना होता है, सबसे पहले जो स्पाइरल है वो ओपन हो जाएगा, मीन्स ये स्ट्रेट होके, उसके बाद में बीच में से जितने भी, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो जो एडेनिन और ग्वानिन मीन्स नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं वो टूट जाएगी। जब वो टूट जाएगी तो ये जो बैकबोन्स हैं, जो मेन स्ट्रैंड्स हैं, हैंड्रेल्स हैं, वो अलग हो जाएंगे। ओके, और अब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे और यहाँ पे नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनता जाएगा। क्लियर है? एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर द होल लेंथ ऑफ द डीएनए। ओके, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा अनकॉइल हो जाएगा, अनरेवल हो जाएगा, एंड धीरे धीरे उसमें नए नए नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और एक मॉलिक्यूल से अब 2 नए डॉटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे।
क्लियर है? दैट्स वाई इट इज सेड कि किसी का भी डीएनए जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है. दैट्स वाई वी आर प्रेफरिंग द डीएनए टेस्ट फॉर पेरेंट्स एंड चाइल्ड. ओके, क्योंकि हमारे डीएनए में भी 50% डीएनए हमारा खुद का डीएनए है, बट द 50% डीएनए इज ऑफ आवर पेरेंट्स. क्लियर? Now, DNA replication is not an important topic from the exam point of view, because exam में इसमें से generally बहुत ही rarely questions पूछे जाते हैं, but still the topic is given in your book, so you should have a brief idea about it. Clear? Now come to the functions of chromosomes. Okay, in the previous part first we have studied about the structure of chromosome, types of chromosome, number of chromosomes. Now let's discuss the function of chromosomes. So here we can say chromosome क्या है, that is the condensed form of that DNA and chromatin network. Okay, so इसका जो function होगा that would be the similar the function of DNA molecules, because they are also hereditary material है और that will contain all the genes, और उन genes के ऊपर क्या है, जितनी भी hereditary informations है. Okay, so they are the hereditary vehicles and they will control the synthesis of all the structural proteins. यानी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं उनमें जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उनका सिंथेसिस किससे होता है? By the genes present on the chromosomes, or we can say the genes present on the DNA, and that DNA is present in the chromosome and during the cell division also. तो सेल डिवीज़न के टाइम पे भी जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उनका भी सिंथेसिस किसके थ्रू होता है? थ्रू दोज पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. Even the chromosomes will control the repairing of cell and even in the growth of new cells. Okay. नेक्स्ट इज इट विल कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म. सेल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है दीज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ओके, सो इन आवर बॉडी रिएक्शंस that all the reaction, digestion, respiration and other reactions also, these will be controlled by some specific proteins. और वो proteins कौन secrete करता है? Just because of the genes present on the chromosomes. Okay, so directly and indirectly they will control the metabolism of our body. Okay, next is it will guide the development and control the cell differentiation. बॉडी का डेवलपमेंट कब होगा? जब जीन एक्सप्रेस होगी, प्रोटीन बनेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेंगे, तभी बॉडी का डेवलपमेंट होगा. सो अगेन इट विल कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट सेल्स. ओके, जो सेल्स हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे दूसरे अदर टाइप्स ऑफ सेल्स में और टिश्यूज में कन्वर्ट होके डिफरेंशिएट होके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना देते हैं. ओके, सो दैट सेल डिफरेंशिएशन विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोटीन सिक्रीटेड बाय द genes on the chromosomes. Clear? Next is in the sex determination. Okay, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर क्रोमोसोम्स के थ्रू ही पता चलता है वेदर इट इज़ अ फीमेल और अ मेल. ओके, बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन डिटरमाइन द सेक्स. बट जेनेटिकली इफ़ यू वांट टू नो दैट दैट पर्टिकुलर सेल इज़ ऑफ अ मेल और अ फीमेल, सो वहाँ पे आपको ऑर्गन नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? ओनली सेल्स के जो क्रोमोसोम्स है. बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट वी आर हैविंग ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स. हर सेल के अंदर 23 पेयर्स हैं जिसमें 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. सो वी विल आइडेंटिफाई दैट सेक्स क्रोमोसोम. इफ इट इज XX then it is female, if it is XY then it is male, and in some of the rare cases it may be a XO chromosome, that is a type of syndrome called as Turner syndrome. So that will happen due to some mutations. Okay, so we can determine the sex with the help of the identification of chromosomes. Clear? Now next come to the important key terms. So DNA क्या है? It is a thread-like structure. Here we will discuss all the important key terms. Means we will revise all the important key terms. DNA, it is a thread-like structure of a nucleic acid carrying all the genetic instructions for the development and functions of our body in the form of genes. DNA क्या है? एक वो thread है जिसपे सारी information हमारी body को, body के development में और functions में जो चीज़ चाहिए होती है उसकी information उस thread पे लिखी हुई है in the form of genes. Many genes are present on the DNA. Okay, and what is gene? Gene is that particular segment of DNA, or we can say it is a unit of heredity which will determine that particular characteristic in the body. क्लियर? जीन क्या है? वो सेगमेंट है जिसपे कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन का सिक्रीशन का कोड लिखा हुआ है. सो जब वो एक्सप्रेस होगा तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन उस जगह पे बन जाएगा और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्रोमेटिन नेटवर्क एंड क्रोमोसोम्स.
क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? जब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाता है तो उसको अब हम बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क. So chromatin network is nothing that is a network in nucleus containing all the DNA packed with the histone proteins. Okay, histone proteins के साथ जब ये DNA और combined होके bind होके coil हो जाएगा तो उसको अब हम chromatin network बोलेंगे. Okay, then next is chromosome. Chromosome is the condensed form of the chromatin network carrying all the genetic information. Okay, so at the time of the cell division ये chromatin network और ज़्यादा condense होके chromosomes में convert हो जाता है. Next is centromere. Centromere क्या है? That is that particular central region or region of the chromosome जहाँ पे कि spindle fibers आके attach होते हैं. So centromere कहाँ present है? Chromosome के structure के अंदर centromere present है. Next is centrosome. Centrosome कहाँ है? सेंट्रोसोम इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? सेंट्रोमियर है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. जस्ट अबव द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है ये ऑर्गेनली, और इस ऑर्गेनली का मेन फंक्शन क्या है? इट विल हेल्प इन द सेल डिवीजन. जब सेल को डिवाइड होना होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है. एंड ये जो सेंट्रोसोम है इसमें जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अब दोनों पोल्स पे जाके उसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और जो क्रोमोसोम्स है उनका डिवीजन कर देते हैं. सो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली विच इज लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस और वी कैन सी नियर द न्यूक्लियस बट नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस. But centromere is present inside the nucleus on the chromosome. So generally these words are very confusing and many students are getting confused between these two words. So please be careful about centromere and centrosome. Now the next is centrioles. Centrioles क्या है? Centrioles are the pair of minute suborganelles in the centrosome. Centrosome के अंदर दो centrioles होते हैं जो कि दोनों poles पे चले जाएंगे. क्लियर? सो सेंट्रियोल्स आर द सब ऑर्गेनलीज ऑफ सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड. इट इज दैट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग फोस्फेट ग्रुप, 1 पेंटोज शुगर एंड 1 नाइट्रोजिनस बेसेस. ये वो रिपीटिंग यूनिट है जो कि डीएनए का मॉलिक्यूल बनाती है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोसोम, सो न्यूक्लियोसोम इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ chromatin network because it consists of 8 histone protein plus 1 helic of DNA. DNA का एक spiral helic and 8 histone protein will comprises the nucleosome. So it is a structural unit of chromatin fiber and nucleotide is a structural unit of that DNA molecule. Nucleotide का diagram भी important है. Sometime it may ask for drawing also. So you just practice to draw the single diagram of one nucleotide. So nucleotide and nucleosomes are also clear. Now come to the next, haploid and diploid cells. We have already discussed कि हमारी body में 2 set of chromosomes होते हैं. 1 set will come from mother and 1 set will come from father. Okay, but in our sex cells, means in our gametes, we are having half set or one single set of chromosome is present. Then it is called as haploid cells. And बाकी जितने भी somatic cells हैं उनमें दोनों set of chromosomes होते हैं तो उनको हम बोलते हैं diploid. Diploid conditions को हम और कैसे mark कर सकते हैं? By 2n. Means if the 2 set of chromosomes are present, then we can say it is a 2n. And haploid को mark कर सकते हैं as it can be denoted as only n. Clear? So here we have discussed all the important key terms also. I hope the chapter is clear to you. Still, if you have any doubts, you can ask me. And now go through the chapter and practice some other questions also. I will upload very soon. Thank you so much.